واضح افسران کی خواہشات خزانے پر بھاری پڑنے لگیں۔ خزانے سے غیر ضروری اخراجات کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بابو صابو کا منصوبہ، افسران کی مارکیٹ سے ڈبل ریٹ پر سامان خریدنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 24 کروڑ 99 لاکھ 80 ہزار کی رقم غیر ضروری اخراجات کی مد میں خرچ ہوگی۔ افسران کا مزید نئی مہنگی ترین 36 لگژری گاڑیاں خریدنے کا منصوبہ۔ اسی پر تفصیلات حاصل کر لیں گے مزید۔ درہ نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، واسا افسران نے جو منصوبے ہیں ترقیاتی اور سرکاری منصوبے ہیں ان کی کنٹینجنسی سے ان کے اندر جو چارج کر کے بھاری بھرکم اشیاء خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے اپنی جو خواہشات ہیں وہ خزانے سے پوری کرنے کے لیے مختلف پرپوزل تیار کیے گئے ہیں، جس کے مطابق ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو بابو صابو کا ہے اس میں افسران مارکیٹ سے دگنے سے زیادہ ریٹ پہ کروڑوں روپے کا سامان خریدیں گے، جس کا پرپوزل تیار کیا۔ دستاویز کے مطابق 24 کروڑ 99 لاکھ 80 ہزار سے زائد رقم غیر ضروری اخراجات کی مد میں اس پروجیکٹ سے نکال کے خرچ کی جائے گی۔ واسا کے افسران نے سینکڑوں لگژری گاڑیوں کے باوجود مزید نئی گاڑیاں 36 خریدے گا۔ 21 کروڑ 97 لاکھ 50 ہزار سے نئی مہنگی گاڑیاں خریدنے کی تجویز ہے جو دستاویز میں اس کے پروجیکٹ میں ڈالی گئی ہے۔ بابو صابو پروجیکٹ کے لیے واسا افسران 1 کروڑ 44 لاکھ 55 ہزار کے کمپیوٹر بھی لیں گے۔ افسران پلانٹ اور مشینری فوٹو کاپی کا سامان 1 کروڑ 7 لاکھ 75 ہزار خریدیں گے۔ حکام جو ہے وہ اس حوالے سے 50 لاکھ کا صرف فرنیچر ہی خریدیں گے، لیکن یہاں تو فرنیچر لیا جا رہا ہے، گاڑیاں لی جا رہی ہیں، لیپ ٹاپ لیے جا رہے ہیں، اور لگژری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ اپنے چیزیں بھی اپ گریڈ کی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پروجیکٹ کی کاسٹ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر جو بچت کی مد میں رکھے جانے والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی پورا کنزیوم کرنے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ واسا آلریڈی اپنے اخراجات سے بہت زیادہ تجاوز کر چکا ہے، جو آمدن ہے وہ کہیں کم ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وفاقی حکومت بجلی صارفین پر مہربان ہے۔ بجلی کی قیمت میں 29 پیسے فی یونٹ کمی لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سی پی پی اے کی ماہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کی درخواست کی گئی ہے۔ نیپرا نے درخواست پر 26 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے شاہد سپرا سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں اس بات کی استدعا کی گئی کہ 29 پیسے فی یونٹ کے حساب سے صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ماہ فروری میں جو بجلی کی پیداوار کی گئی تو بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی ہوئی، اس لیے 29 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اس میں کمی کی جا سکتی ہے اور فروری کے یونٹس پر صارفین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو نیپرا نے 26 مارچ کو اس پر سماعت مقرر کی ہے، اور اسی سماعت میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ 29 پیسے فی یونٹ کے حساب سے کمی کی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر نیپرا کی جانب سے باضابطہ طور پر اس کی منظوری دی جاتی ہے اور تو ایک نوٹیفیکیشن لیسکو سمیت دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ارسال کیا جاتا ہے، تو آئندہ ماہ جو بلنگ ہوگی اس میں ماہ فروری کے استعمال شدہ یونٹس کے مطابق 29 پیسے فی یونٹ کے حساب سے کمی کی جائے گی، اور یہ بلوں پر ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ۔ صوبائی حکومت کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ عمارت کی تعمیر پر 4 ارب 41 کروڑ 90 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ کلیم اختر ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی کلیم۔ حکومت کی جانب سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جو نئی ہیڈ کوارٹر عمارت ہے وہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پر مجموعی طور پر 4 ارب 41 کروڑ 90 لاکھ روپے لاگت آئے گی، اور اس سلسلہ میں جو سیکٹری محکمہ خزانہ پنجاب ہیں ان کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو دستاویزات ہیں وہ بھی مرتب کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی کی نئی ہیڈ کوارٹر عمارت ہے وہ جون 2027 میں مکمل کی جائے گی، اور رواں مالی سال میں جو باقاعدہ طور پر بجٹ مختص کیا گیا اس کے لیے وہ 2 ارب 30 کروڑ 90 لاکھ ہے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جو عمارت نہیں بنائی جائے گی اس کے اندر نہ صرف لاہور کمشنریٹ بلکہ اس کے علاوہ جو کمشنر اپیل ہے وہ بھی ایک ہی چھت تلے ہوں گے، اور جتنے بھی ٹیکس دہندگان ہیں یا اس کے علاوہ جو تاجر ہیں ان کو تمام تر جو سہولیات ہیں وہ بھی صرف ایک ہی عمارت میں ایک ہی چھت تلے مل سکیں گی۔ جبکہ اس کے علاوہ مزید یہ بتایا گیا ہے کہ عمارت پر 3 ارب 62 کروڑ 20 لاکھ روپے جو ہیں یہ خرچ کیے جائیں گے، جبکہ اس کے علاوہ 19 کروڑ اور جو 28 لاکھ روپے ہیں یہ صرف اور صرف جو فرنیچر کی خریداری ہے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور اس کی خریداری کے لیے ہی استعمال کیا جائیں گے۔ جبکہ اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو پنجاب ریونیو ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم۔ ڈیوٹی پر کھڑے وارڈنز بھی اب ہیلمٹ پہنیں گے۔ ٹریفک وارڈنز کی حفاظت کے پیش نظر سی ٹی او نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔
चौक चौराहों पर ड्यूटी अंजाम देने वाले वार्डन्स पर हेलमेट पहनना लाजमी करार है। तफसीलात जान लेते हैं, आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, बताइएगा आबिद। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक वार्डन्स की हिफाजत के पेश नजर सीटीओ ने नया हुक्मनामा जारी किया है, जिनमें उनका कहना है कि चौक चौराहों पर ड्यूटी अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स पर हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद के हुक्म पर ट्रैफिक वार्डन्स को आगाह कर दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स को बजरिया वायरलेस मैसेज आगाह किया गया, जिसमें कहा गया है कि गर्मी हो या सर्दी, चौक में खड़े ट्रैफिक वार्डन्स दौरान ड्यूटी हेलमेट लाजमी पहनेंगे और हादसा में मुतअद्दिद वार्डन्स के जख्मी होने पर हेलमेट पहनने का फैसला किया गया है। और दूसरी जानिब डिविजनल अफसरान को भी अहकाम दिए गए कि वो अपने अपने इलाके में स्टैंडिंग ड्यूटी चेक करके इनको फौरी तौर पर हेलमेट पहनने का हुक्म दें। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। क्लासरूम्स में असातिज़ा और तलबा का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का मामला। महकमा हायर एजुकेशन ने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। कॉलेजेस में दौरान क्लासेस मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर अब पाबंदी होगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं इमरान यूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी, सरकारी कॉलेज की यकीन बन गई थी कि क्लासरूम्स में साजा और तलबा जो है वो मोबाइल यूज करते थे और हायर एजुकेशन को इस हवाले से शिकायत भी मौसूल हुई थी। सो महकमा हायर एजुकेशन ने सरकारी कॉलेजेस में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है और महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक कॉलेजेस में दौरान क्लासेस मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी और महकमा हायर एजुकेशन ने डायरेक्टर कॉलेजेस और तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी कर दी हैं और जो मरासला जारी किया गया है उसके मुताबिक असातिज़ा और तलबा दोनों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से तदरीस का अमल जो है उसमें खलल पड़ता है और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से क्लासेस में पढ़ाई भी मुतासिर होती है और मरासले में ये भी बयान किया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान यूनस साहब का। महकमा स्कूल एजुकेशन का अनोखा इकदाम, लार्ज स्केल असेसमेंट में मुतल्लिका मजमून के टीचर का भी टेस्ट लिया जाएगा। पंजाब भर की स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट का आगाज हो चुका है। तफसीलात हासिल करेंगे जुनैद से। जुनैद बताइएगा। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन का अनोखा इकदाम, स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है लेकिन उसके साथ साथ लार्ज स्केल असेसमेंट भी शुरू कर दी गई है और इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर बच्चों का लार्ज स्केल असेसमेंट मुनक्कद करवाएगा वो उसके साथ साथ मुतल्लिका मजमून के टीचर का भी टेस्ट लेगा और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो स्कूल मेंबर का भी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और इसके साथ साथ जो वालिदैन होंगे उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इस हवाले से जो असेसमेंट होगी उसके हवाले से स्कूल सरबराह का इंटरव्यू भी लिया जाएगा ताकि स्कूलों में मौजूद सहूलियात का भी तयन किया जा सके। इस हवाले से हेडमास्टर एसोसिएशन पंजाब ने इस पर तशवीश का इजहार किया कि बच्चे डबल इम्तिहानात कैसे देंगे क्योंकि स्कूल बेस्ड असेसमेंट और लार्ज स्केल असेसमेंट बेवक्त वक्त जो है वो स्कूलों में शुरू कर दी गई है जिससे वालिदैन भी परेशानी से दो चार हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि इस शेड्यूल के। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीम साजी का नया प्लान। नए तंजीमी प्लान से बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट कमेटियां ख़त्म हो जाएंगी। प्लान के तलाक की इब्तदा लाहौर से की जाएगी। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नए तंजीम साजी प्लान के तहत बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट कमेटियां ख़त्म करने का फैसला जो है वो कर लिया और प्लान के तलाक की इब्तदा लाहौर से की जाएगी। नई तंजीम साजी के तहत सूबाई दारुल हुकूमत में 9 टाउन्स और 1 कैंटोनमेंट पर मुश्तमिल जो तंजीम साजी है उसका अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी ने लाहौर के 4 डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करके टाउन की सतह पर तंजीम साजी करने का फैसला पार्टी को मुतरक करने के लिए किया। इस हवाले से राय के कहना है कि टाउन की सतह पर तंजीम साजी के अमल से ज़्यादा पार्टी कारकुनों को लाहौर तंजीम में शामिल किया जा सकेगा। इसके साथ साथ लाहौर में कामयाबी के बाद इस प्लान का इतलाक जो है वो दीगर जो शहर हैं उनमें भी किया जाएगा और नए प्लान के तहत ज़्यादा तंजीमी ओहदे ज़्यादा मुतहरिक होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी का वाकया। चिल्ड्रन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड डिस्पोजेबल चोरी करते पकड़ा गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, ये सरकारी अस्पतालों से अद्वियात की चोरी के जो वाकयात हैं उनका सिलसिला थम नहीं सका और अब चिल्ड्रन अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो डिस्पोजेबल्स चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जो हमजा इस्लाम नामी सिक्योरिटी गार्ड है जिसके बैग से बड़ी तादाद में आइवलाइन सेट्स जो हैं वो डिस्पोजेबल जो है ना वो बरामद हुए और इस पर थाना नसीराबाद में हमजा इस्लाम को गिरफ्तार करके जो है उसके खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दौरान तफ्तीश जो हमजा इस्लाम है उसने बताया कि जावेद मसीह, सलीम जॉर्ज, फैसल मसीह भी इस काम में जो है वो उसके साथ मुलव्वस हैं और अब इनके नाम भी जो है वो FIR के मतन का हिस्सा हैं। और हमजा इस्लाम इन तीनों अफराद से जो है वो अस्पताल से चोरी की गई अद्वियात और डिस्पोजेबल जो है वो लेता था, जिनको जो है वो बाहर फरोख्त किया जा रहा था। जी ठीक है, जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया। ब्यूरोक्रेसी ने दरबार हॉल सिविल सेक्रेटेरिएट की तज़ीन व आराइश शुरू कर दी है। दरबार हॉल सिविल सेक्रेटेरिएट की तज़ीन व आराइश पर लाखों रुपए खर्च होंगे। इसी पर बात कर लेंगे, कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। सेक्रेटेरिएट के दरबार हाल की तोड़ फोड़ कर दी गई है और नए अच्छे बने हुए दरबार हाल को दोबारा नए सिरे से ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो तज़ीन राज शुरू कर दिया है कि ब्यूरोक्रेसी को अच्छा भला दरबार हाल बना था, जहां अच्छा वुड वर्क भी हुआ था और टाइलें भी लगी हुई थी और तज़ीन राश भी हुई थी, लेकिन उसको दोबारा उखाड़ा जा रहा है और दोबारा उखाड़ा जाकर सरकार का पैसा ज़ाय किया जा रहा है और लाखों रुपये जो है वो दोबारा नए सिरे से खर्च किए जा रहे हैं दरबार हाल सिविल सेक्रेटेरिएट की तज़ीन राज पर, जो कि वक्त का भी ज़िया है और फाइनेंशियली भी ज़िया है, माली तौर पर भी ज़िया है, ख़जाने का भी ज़िया है। और इस वाले से लेकर ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने जब भी जहाँ जाते हैं या तो दफ्तर पहले रेनोवेट करते हैं, फिर बैठते हैं, गाड़ी तब्दील करते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं और जहाँ कमेटी रूम कॉन्फ्रेंस करनी होती है उसको भी तब्दील करते हैं, उसकी रेनोवेट करते हैं, फिर बैठते हैं, लेकिन अपने जो ज़ाती खर्चे हैं वो उस पर ठीक है, कैसे खोकर बहुत शुक्रिया। 2 अफराद के कत्ल केस में फांसी और उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिम बरी कर दिए गए। 10 साल बाद सजाए मौत के कैदी अली शेर और उम्र कैद के मुजरिम अकबर अली बरी कर दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने फांसी और उम्र कैद की सजा पाने वाले 2 मुजरिमान को बरी कर दिया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी मलिक अशरफ। और प्रोसिक्यूशन की नाकस कारकर्दगी के बहस लाहौर हाई कोर्ट से बरी होने वाले मुजरिमान की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और संगीन मुकदमात जिसमें कत्ल जैसे संगीन जो जुर्म हैं इनमें भी फांसी और उम्र कैद पाने वाले मुजरिमान बरी हो रहे हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल 2 शहरियों के कत्ल केस में फांसी और उम्र कैद पाने वाले 2 मुजरिम बरी हो गए हैं और अदालत ने इन 2 मुजरिमान को चश्मदीद गवाहों की मौका पर मौजूदगी साबित ना होने और इसके साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें तजाद होने के बाद दोनों मुजरिमान को बरी किया है और कत्ल केस के 10 साल बाद दोनों मुजरिमान लाहौर हाई कोर्ट से आज बरी हो गए हैं। वकील सिपाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि थाना कंगरपुर ने दोनों मुजरिमान पर 2 अफराद को कत्ल करने और 1 शहरी को ज़ख्मी करने पर मुकदमा दर्ज किया और ट्रायल कोर्ट ने 1 मुजरिम अली शेर को सजाए मौत और दूसरे अकबर अली को उम्र कैद का हुक्म सुनाया था। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।